Okay, here we go. Welcome class to this lecture number 3 on Family to Hindu Marriage Act. First two videos have been uploaded which you must have watched. I presume that you have watched those videos. And we also had a live session on Google Meet in the last week where I have started dealing with the topic maintenance. So whatever topics I start teaching in a live lecture will be taken live, and whatever videos will be uploaded, those can be revised. Any queries, any difficulties, you can ask me right that time. Only one request, see, please make it a point, all students, that you ask only relevant questions. Point number one, the questions or queries must be relevant to the topic that I am teaching. And point number two, these queries must not be personal queries. कोई अपने केस के बारे में नहीं पूछेगा इन क्लास. हाँ, इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस, any legal opinion from me, you are most welcome. You can contact me personally and meet me in my office, but not in a open classroom or in a Google meeting, where I am supposed to teach you only the laws, and we will be teaching and dealing only with the general laws. So no specific questions or no personal questions will be attended and entertained by me. Please make it a point. Okay, now see, we have covered certain definitions of Hindu law. Then we saw Hindu Act is applicable to whom? Hindu Marriage Act, all codified laws rather, the Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act, the Hindu Guardianship, the Minority and Guardianship Act, and Hindu Adoptions and Maintenance Act. This is the codified part, and these all equally applies to Hindus, and who are subclasses of Hindus who are also considered to be Hindus, who are Buddhists, Jains, and Sikhs. In other words, to put it precisely, those who are Muslims, Christians, Parsis and Jews, Hindu marriage will not be applicable. Okay. Then going further, I dealt with the provisions of, then we saw that the codified laws have, now this is a recap, so I am revising what I have already covered. Then codified laws are having a overriding effect over the uncodified law. So if there is anything X that the uncodified law says, and there is something Y which these codified laws say, it is these codified laws, those will be applicable, and they will have an overriding effect on whatever is stated in the uncodified law. ये दिमाग में रखने का है हमेशा. Then I covered the ceremonies of Hindu marriage, the way in which a Hindu marriage can be solemnized. So videos वो देख लो, revision हो जाएगी. Then we saw section 8, section 7 was ceremonies of marriage. Then section 8 was the registration of Hindu marriage, which is compulsory and mandatory. In Maharashtra, by a Maharashtra government notification, it is compulsory. But under the proviso, in no way, if a marriage is not registered, it will not affect the legal status of the marriage. See, understand, legal, what is registration of marriage? It is just a fact. It is a proof that a marriage has been solemnized. So basically, the marriage is registered or not is a different issue, but for a marriage to be enforceable, it must be firstly valid. Marriage के 3 टाइप्स है जो हमने देखे. Marriages are of 3 types based on enforceability. There is firstly a valid marriage, then secondly a void marriage, and thirdly a voidable marriage. Void marriage तो void है, valid marriage valid है. डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है? voidable की, जो मैंने थोड़ा सा आपको लाइव लेक्चर में रिवाइज किया था. And we had also touched on the aspects of contract. Though I don't know whether such kind of question will be asked or not coming to your paper pattern right now, but a question could have been asked, and I don't know whether it will be asked. I cannot ensure कि ऐसा question आएगा ही नहीं. That please write a critical note that whether a Hindu marriage is a sacrament or a contract, or is a Hindu marriage a contract. तो उसका आंसर प्रिसाइसली ये आएगा that no, Hindu marriage is not a contract, it is a sacrament. That is the reason why the parties have to undergo certain ceremonies, and that is why it is said that a marriage is solemnized. तो मैरिज के 2 टाइप्स फिर से याद दिलाता हूँ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर. मैरिजेस अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर होना है, इट इज़ अंडर द हिंदू वैदिक राइट्स और बाय द और एनी अदर मेथड जहाँ पे कुछ सेरेमनीज अंडरगो करना पड़ेगा. इन द लाइट ऑफ सेक्शन 7, these marriages are solemnized, and these marriages are then subsequently registered. Before whom? The registrar of sub assurances. जहाँ पे एग्रीमेंट्स रजिस्टर होते हैं वहीं पे एक अलग रजिस्ट्रार है मैरिजेस का,
एंड इफ यू आर डायरेक्टली रजिस्टरिंग द मैरिज विदाउट सोलमनाइजेशन ऑफ दैट मैरिज, और सीधा उसको रजिस्टर्ड मैरिज बोलते हैं, जिसको बहुत पैरेलल्स में रॉन्गली इवन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स बोलते हैं कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया. इट इज़ नॉट अ कोर्ट मैरिज, इट इज़ अ रजिस्टर्ड मैरिज, एंड दैट मैरिज इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, जो सीधा रजिस्टर के सामने किया जाता है. सो दो ऑप्शन, एक तो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से धार्मिक पद्धति से हो जाएगा बाय अंडरगोइंग अ सप्तपदी. इन केस ऑफ बुद्धिस्ट बाय वेज ऑफ एक्सचेंजिंग वोज, उसको थोड़ा सा निकाह का स्वरूप है. देन पार्टीज अगर सिक्स होंगी तो अनंतकारा करना पड़ेगा, एंड पार्टीज अगर हिंदू और जैन को तो सप्तपदी ही करना पड़ेगा. एंड इफ द पार्टीज आर जट्स, इन दैट केस अगर उनके वहाँ पे वो चादर ओढ़नी जो है, जो मैंने लाइव लेक्चर में बताया था और सेरेमनीज ऑफ मैरिज के वीडियो में डिस्कस किया था, वो सेरेमनीज अंडरगो करना पड़ेगा. देन गोइंग फर्दर, देन वी सॉ दैट so the point was what I was trying to tell you, I just lost my sight on it. The point what I'm trying to discuss is that marriage register है, ये तो एक फैक्ट हो गई, लेकिन अगर void मैरिज रजिस्टर हो गया है तो भी वो void ही रहेगा. So validity, या मतलब whether that marriage is valid marriage, whether that marriage is void marriage, or whether that marriage is a voidable marriage, even if those marriages are registered, उसका legal status affect नहीं होगा. Only thing is what, marriage register हो गया, that is a conclusive evidence of the existence of marriage, that the marriage has actually taken place. उसमें उसका लीगल इम्प्लीकेशन है. सो इफ अ मैरिज इज सोलमनाइज और वो void है, parties are in complete violation of the section 5. Then I discuss section 5, which is the basic condition which lays down conditions of a valid Hindu marriage. So valid Hindu marriage होने के लिए क्या होना चाहिए? In any case, subsection Roman section 5 सबसेक्शन रोमन 1, दैट इज़ पहले से शादी हो चुकी है तो सेकेंड मैरिज नहीं हो सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द अनदर स्पाउस और ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज. व्हाट इज सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज? की शादी हो चुकी है, वो शादी वैलिड मैरिज है. एंड फॉर वॉट एवर रीजन्स, इवन इफ द पार्टीज आर रिसाइडिंग सेपरेटली इवन फॉर 10 years, दे स्टिल रिमेन हस्बैंड एंड वाइफ. सो अगर मैरिज वैलिड मैरिज है, प्रॉपर सेरेमनीज अंडर गो किया हुआ है, रजिस्टर होने दो नहीं होने दो, दैट विल नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ मैरिज. एंड देन द मैरिज इज इन सब्सिस्टेंस टिल द पार्टीज आर अलाइव इवन इफ दे आर लिविंग सेपरेटली. तो पति पत्नी अगर अलग अलग रहते तो भी वो शादी सब्सिस्टेंस में है. आई एम अगेन रिपीटिंग दैट पॉइंट. सो ये शादी खत्म कभी होगी? ओनली व्हेन डिक्री ऑफ डिवोर्स इज ग्रांटेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. विच इज अ कॉम्पिटेंट कोर्ट? ये भी मैंने डिस्कस किया था. इन केस वेयर इफ एनी सिटी हैज़ अ फैमिली कोर्ट लाइक थाने सिटी, तो वहाँ पे फैमिली कोर्ट में जाएगा. लेकिन अगर वो सिटी का जुरिस्डिक्शन के लिए, सी जुरिस्डिक्शन के भी टाइप्स होते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन? नंबर 1 टेरिटोरियल, नंबर 2 पिक्यूनियरी, नंबर 3 एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट. कभी कभी कोई सूट का स्पेशल जुरिस्डिक्शन किसी कोर्ट के पास रहता है, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कुछ होगा, और एम्प्लॉयर अगर प्राइवेट एम्प्लॉयर है दैट विल गो बिफोर द लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट. अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड द एम्प्लॉय इज गवर्नड बाय द महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल MCS रूल्स, in that case jurisdiction between the employer employee, any dispute, whatever the dispute may be, termination होगा या प्रमोशन नहीं दिया है या कोई स्ट्रिक्चर है या इंक्रीमेंट नहीं दिया, वॉट एवर, ऑल दोज थिंग्स विल गो बिफोर अ स्पेशल ट्राइब्यूनल कॉल्ड एज मैट, MAT बोलते हैं उसको, मैट, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. एंड इफ द एम्प्लॉयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉय इज गवर्नड बाय द Central Civil Services Rules, CCS rules, in that case the jurisdiction of such disputes between the employer and employee will go before the CAT, that is the Central Administrative Tribunal. So ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए. तो if there is a family court, the matters will go before the family court. For cities or taluka places where there is no special or there is no separate family court, in that case these matters will go before the civil judge senior division. Civil judge senior division, वरिष्ठ स्तर, वरिष्ठ स्तर मराठीत त्याला वरिष्ठ स्तर म्हणतात. सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन.
and only if the marriage is solemnized under the any other act than Hindu Marriage Act, इन केस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं, अगर फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट में ही जाएगा, लेट इट बी अंदर एनी अदर एक्ट ऑल्सो, एनी अदर एक्ट ऑल्सो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लेस है वहाँ पे इफ़ द मैरिज इज सॉल्मनाइज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट और अंडर द इंडियन डिवोर्स एक्ट, मतलब क्रिश्चियन लोगों का जो शादी है वो, दैट विल गो बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज, एंड इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पारसी मैरिज एक्ट होगा, इट गोज बिफोर द हाई कोर्ट एंड नॉट family court. This is clear? Okay. Now see, going further, then I discussed section 16, that is legitimacy of children, क्योंकि ये issue हर एक मैरिज को आ सकता है. तो even if a child is illegitimate means what? नाजायज़ औलाद, कि पेरेंट्स की शादी वैलिड नहीं है, वॉइड मैरिज में से जो बच्चे पैदा होते हैं वो वैलिड नहीं होते, उनको इलेजिटिमेट बोला जाता है. Yet the act protects them and it is not their mistake. So in sweep of section 16, even illegitimate children are deemed to be legitimate. So the child will not lose his right. बच्चे का दोष क्या है? आई बापानी शेण खाल्ला, आई बापानी काय चुकीचं केलं, माँ बाप ने गलती क्या पाप किया, उसकी सजा औलाद क्यों भुगते, उसकी गलती क्या है? गलती कुछ नहीं है. So he must not suffer, that child, he or she, whoever it is, must not suffer any loss. So they are covered under the act, under that particular section, and they will be deemed to be legitimate, so उनको सब rights मिलेंगे. Then I discussed section 14 during the live lecture also and in the video also, that from 1 year from the date of solemnization of marriage, so कम से कम 1 साल, तो आज की तारीख पकड़ लो, शायद आज अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को टाइम है इसलिए आज की तारीख है 9 अगस्त. सो समझो आज शादी हुई, इफ दैट मैरिज इज solemnized टुडे, दैट इज ऑन 9th August 2020, no petition for divorce can be filed after the marriage is solemnized till 1 year of the date of marriage. So naturally 8 August 2021 that is next year तक पिटिशन डिवोर्स के लिए फाइल नहीं हो सकता है. Now why this provision is there? वरना आज तो बच्चों का खेल होगा, इवन डिवोर्स का कितना रेशियो बढ़ गया है देखो. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ मैरिज, लव मैरिज के अगेंस्ट वो ऐसा नहीं है, लेकिन इफ़ यू सी द रेट ऑफ डिवोर्स, अगर हम रेशियो देखें तो अगर 100 डिवोर्स हो रहे हैं तो उसमें से कम 80 मैरिजेस है जो लव मैरिज थे. वो लव मैरिज में क्या होता है वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था. सी, एक पार्टी है जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे मित्र है, प्रेयसी है, प्रेमिका है, वो घर के बाहर मिलते हैं तो मिलना अलग हो गया, और घर में जब एक साथ रहते हो मिलना अलग होता है. वाह, क्या टी शर्ट पहना है, क्या जीन्स पहनी है, क्या चिकनी लग रही है, क्या चिकना लग रहा है, एकदम छावा दिखता है, ये वो सब फलाना ढिमका. लेकिन घर में जाओ तो फिर वो आधे चड्डी में रहेगा. ये कैसे रहता है, घर में क्या करता है, देन उसके हैबिट्स आपको पसंद नहीं आती है, अरे टॉवेल सर पोछ के किधर रख देते हो. सो यहाँ से डिस्प्यूट चालू हो जाते हैं. तो वही लड़का जो बहुत ज़्यादा अच्छा था या बहुत लड़की जो बहुत सुंदर थी, शायद उसकी आदत है, अरे यार देखो उसके बाल गिर गए, साफ भी नहीं किए, वो बोली गई अरे पति ने देखो टॉवेल से सर पोछा और गीला टॉवेल बेड पे ही फेंक दिया, वळातच नाही टाकले कपडे. सो दीज थिंग्स विल मैटर. एंड शायद जो लोग एक दूसरे के प्यार में थे वो बाद में प्यार एक दूसरे पे वार करते हैं. म्हणून मराठीत मी मजेत म्हणतो की जो लड़की, या हिंदी में भी समझ लो, जो लड़की शादी से पहले बहुत सुंदर लगती है, शायद शादी के बाद वही बंदर लगने लगे. प्रॉब्लम होता है वो थिंग्स ये. एंड इसमें क्या होता है बेसिक, आज इफ़ यू सी टुडेज वर्ल्ड, लोगों के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है, दे डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर. कोई भी शादी, जैसे अचार रहता है, आप आम का अचार बनाओ, आज अचार जमाया, उसमें मसाला वसाला डाल के उसको तेल वेल डाल के मिक्स करके रख दिया, इमीडिएटली कल खाओगे तो जमेगा क्या? नहीं, उसको टाइम लगेगा. इट टेक्स टाइम टू मॅच्युअर. त्याला मराठीत काय म्हणतात, अजून लोणचं मुरलं नाही, वो जम नहीं गया. या दही जमाओ, दही लगाओ, 1 घंटे के बाद खा सकते हो, नहीं उसको पूरा दिन लगेगा, या जितना आधा दिन जो भी टाइम है वो लगेगा, उससे पहले वो तैयार नहीं होगा. लोगों के पास वो टाइम ही नहीं एक दूसरे को देने के लिए. आज शादी कल डिवोर्स, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इफ सेक्शन 14 इज नॉट देयर, पीपल विल मैरी एंड इमीडिएटली अप्लाई फॉर डिवोर्स. तो एटलीस्ट 1 साल में शायद कभी कभी क्या होता है ना, पार्टीज रिकनसाइल,
जो चीज़ साथ में होती है ना उसका कीमत नहीं होता है, उसको खोने के बाद शायद उसकी कीमत पता चलती है। तो ऐसा कभी कभी पति पत्नी के बीच में रहता है कि बाबा वो पति छोड़ के गया या अलग रहने लगे, एंड देन पार्टीज रियलाइज दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, सो दे कम डाउन टू टर्म्स, दे सेटल डाउन, दे रिकनसाइल एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। तो ये थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। सो 1 साल का है। देन अंडर द प्रोवाइजो टू दैट सेक्शन 1 साल से पहले भी एक्सेप्ट किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ हार्डशिप्स, ऑन ग्राउंड्स ऑफ हार्डशिप्स के रुक के कुछ फायदा ही नहीं, कुछ होने ही वाला नहीं है, ऐसा अगर आप कोर्ट को प्रूव कर सको, द कोर्ट विल कंडोन दैट टाइम, नॉट कंडोन दैट टाइम, द कोर्ट विल एक्सेप्ट योर पिटिशन बिफोर दैट 1 ईयर हैज इलेप्स्ड। सो उसमें कैसा रहता है, आपको मैरिज पिटिशन फाइल करना पड़ेगा और एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा कि मेरा शादी को 1 साल नहीं हुआ है, काइंडली एक्सेप्ट दैट अर्लियर। कोर्ट को अगर वो जमेगा दे विल एक्सेप्ट, अगर नहीं जमता योर पिटिशन विल नॉट बी डिसमिस्ड, simpliciter the petition will be returned back to you that you kindly present this after 1 year। ये क्लियर हो गया? ओके। Then going further, I also dealt with section 11, that is void marriages। void marriages तो आपका एक्चुअली सेक्शन 5 में कवर हो चुका है, सेक्शन 5 जो भी बोला था। सेक्शन 11 एक बार पढ़ लो। I hope everybody is having a vertex with them which you need to have। void marriages, any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on a petition presented by either parties thereto। ये either parties thereto बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो, ब्लॉक करो, मार्क कर लो, जो भी करना है कर लो। either parties thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if by a degree of nullity। nullity means what? non existent, non s, लीगल टर्म में उसको बोलते हैं नॉन एस, NONEST मीन्स नॉट इन एग्जिस्टेंस एट ऑल, एज गुड एज नो मैरिज एट ऑल। नॉन एस दैट इज इट्स अ नलिटी इफ इट कॉन्ट्रावेन्स एनी ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस रोमन 1, रोमन 4 एंड रोमन 5 ऑफ सेक्शन 5। ये मैंने बहुत डिटेल में पहले वीडियो में किया हुआ है, वो आप एक बार फिर से यू कैन ऑलवेज गो टू दैट वीडियो, उसको वॉच करो और रिवाइज कर लो। Then you see the videos are being uploaded on the Google Drive and also I am uploading those videos on the YouTube also। Why I will tell you, actually YouTube पे लोड करना थोड़ा सा रिस्की होता है, anybody can have a view to that। Just go to YouTube, type AMBAR अंबर जोशी, मेरा चैनल पे जाओ, आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे। देयर आर सर्टन वीडियोस ऑफ द कॉमर्स कॉलेज ऑल्सो जहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी डील किया हुआ है, तो अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए भी हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दोज वीडियोज़। यूट्यूब पे लोड करने का एक ही फ़ायदा होता है दैट यू डोंट वेस्ट योर डेटा इन डाउनलोडिंग दैट थिंग। वो लिंक आपको मिल गया, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट वॉचिंग। सो दैट इज़ माई बेसिक इंटेंशन, क्योंकि अभी के पोजीशन में डेटा का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, इवन आई एम फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डेटा। तो मैंने भी वाईफाई लगवा लिया क्योंकि मोबाइल का डेटा कम पड़ जाता है। एंड बीइंग ऑनलाइन ऑल द टाइम फॉर वर्क, मेरा 2 कॉलेजेस का लेक्चर्स है, कभी कभी कोर्ट का कुछ काम रहता है, कभी क्लाइंट के साथ कुछ रहता है, ऑनलाइन तो बहुत चल रहा है आजकल, तो डेटा कम पड़ जाता है। सो आई हैव टेकन अ वाईफाई, सो ऑलवेज हैव अ वाईफाई। दैट अपार्ट, दैट इज़ योर चॉइस। सो नाउ सी व्हाट इज सेक्शन 5 हमने डील किया था। रोमन 1 क्या है एक बार फिर से जाके देख लो। फॉर अ मोमेंट लेट अस रिवाइज, गो टू सेक्शन 5। yes, conditions for a Hindu marriage। marriage may be solemnized between any 2 Hindus, so दोनों must be Hindus either by birth or by conversion। between any 2 Hindus if the following conditions are fulfilled, namely Roman 1। see, this is the important condition for section 11 void marriages। अगर ये violate हो गया, Roman 1, Roman 4, Roman 5, marriage will be a void marriage। Roman 1, neither party has a spouse living at the time of the marriage। then go to Roman 4, the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two। and what is Roman 5? the parties must not be subpoenas of each other। rest of the section is very same। सो अगर दोनों पार्टीज में ऐसा कोई कस्टम या यूसेज है विच परमिट्स सच अ मैरिज, इन दैट केस वो मैरिज प्रोहिबिटेड डिग्रीज में भी होगा तो भी वैलिड होगा। बट आइदर सी देखो, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू सेरेमनीज ऑफ मैरिज,
कौन सा आप सेरेमनी फॉलो कर सकते हो, एप्लीकेबल आइदर टू द पार्टीज, और यहाँ पे कस्टम कैसा होना चाहिए, एप्लीकेबल टू बोथ द पार्टीज देयर टू। सो अगर एक को एप्लीकेबल है दूसरे को नहीं तो वो नहीं होगा। कुछ लोगों में रहता है ना, शहाण्णव कोळी मराठी आहेत किंवा साऊथला जा, आंध्र प्रदेशमध्ये जा, तमिलनाडूमध्ये जा, मामा के लड़की के साथ शादी करने का रिवाज है। सो शी इज़ योर सिस्टर ओनली, कजिन सिस्टर। मामा की लड़की मीन्स व्हाट, मामे बहन, योर मैटरनल सिस्टर। तो उसके साथ शादी करने की रूढ़ी और परंपरा बहुत पुराने साल से है, वो आज भी है, बट इट मस्ट बी टू बोथ। तो उसका व्हाट आर द थिंग्स फॉर प्रैक्टिस टू बिकम अ कस्टम, वो भी मैंने डिस्कस किया था, वो भी देख लो, सेक्शन 3 डेफिनेशन में भी देख लो, दैट फॉर एनी प्रैक्टिस टू बी अ कस्टम, पॉइंट नंबर 1, इट मस्ट बी इन प्रैक्टिस सिंस एजेस, एंटिक्विटी बोलते हैं उसको। कब से चालू हुई है, यू कैन से 50 साल, 10 साल, 50 साल, डोंट नो। ये आपको किसने बताया था, हु टोल्ड यू अबाउट दिस प्रैक्टिस? आई हैड हर्ड दिस फ्रॉम माई फादर। सो गो एंड आस्क योर फादर, वो क्या बोलेगा, आई हैड हर्ड फ्रॉम माई फादर। अगर ग्रैंडफादर भी बाई चांस जिंदा है, उनको पूछ लो, वो बोलेंगे मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया। अभी ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर तो जिंदा होने का चांसेस कम होते हैं, सो मेनी जनरेशन डोंट को एग्जिस्ट, सो यू डोंट नो एग्जैक्टली कभी चालू हुआ था। देन सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट बी प्रैक्टिस विदाउट एनी गैप, कभी उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया होगा। हाँ, बीच में 10 साल बंद कर दिया, अभी फिर चालू करेंगे, दैट इज नॉट क्वालिफाइंग एज अ कस्टम। देन पॉइंट नंबर 3, दैट practice must not be illegal, and point number 4, it must not be immoral or against public moral। तो वो सेक्शन 3 पढ़ लो, मैंने लेक्चर में उसको पहले से प्रॉपरली डील किया हुआ है। सो यहाँ पे रिकैप खत्म हो गया। नाउ एक्चुअली आई गो फर्दर, सेक्शन 11 फिर से जाओ। नाउ सी, उसमें क्या लिखा है, एनी मैरिज सोलमनाइज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड and may on a petition presented by either parties thereto against the other party। so ideally other means, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी words are very clumsy, words are very difficult to understand, सिंपल लाइन में समझ लो, खाली पति पत्नी के खिलाफ या पति पत्नी के खिलाफ ऐसा पिटिशन फाइल कर सकता है। नाउ सी, प्रैक्टिकली टेल मी, इफ बोथ द पार्टीज आर इन अ वॉइड मैरिज, उनमें से कौन जाएगा कोर्ट में? नहीं जाएगा। सो नेचुरली वो डिक्लेरेशन आप और मैं तो नहीं ले सकते हो कि आपका कोई दोस्त और उसका कोई गर्लफ्रेंड है, उसने शादी की है, उनका वॉइड मैरिज है, यू हैव गॉट नो बिजनेस विद दैट। तो आप कोर्ट में जाओगे तो भी आपको निकाल देंगे, क्या है, यू डोंट हैव अ लोकल स्टैंडिंग, आपका संबंध क्या है वो चीज़ से, नहीं है। हाँ, ओनली आई टोल्ड यू दैट इन सर्टन केसेस जहाँ पे समझो पति की मौत हो जाती है और अगर जॉइंट फैमिली में से कुछ प्रॉपर्टी वो औरत को मिलने वाली है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो मैरिज वॉइड होता है। लेकिन सी, सेक्शन 16 को देखो, सो इवन यू नाउ से एज्यूम दैट बोथ द पार्टीज आर इन अ वॉइड मैरिज, सो उनका मैरिज वॉइड हो गया। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉइड मैरिज? नो कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ नो मैरिज एट ऑल। पॉइंट नंबर 2, देर आर नो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, वो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, तो अगर उनके बच्चे होते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इलिजिटिमेट है। लेकिन सेक्शन 16 विल प्रोटेक्ट सच चिल्ड्रन एंड दैट वाइफ कैन क्लेम थ्रू हर चिल्ड्रन, तो उसका अलग से हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन वो जब भी हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको बताऊंगा तभी वी विल डील विद दैट, वाइफ का एक शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वाइफ नहीं है तो अगर 2 बच्चे हैं, तो अगर एक आदमी मरता है, इफ अ पर्सन डाइज इंटेस्टेड विदाउट लिविंग अ विल एंड ही हैज़ 1 वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, तो उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है, समझो जॉइंट फैमिली में से उसको कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल रहा है, दैट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 1 पार्ट विल बी फॉर द विडो एंड 2 फॉर द चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे क्या होगा, विडो एक्सक्लूड हो जाएगी क्योंकि शादी क्या है, वॉइड है, लेकिन बच्चे तो है, सो 2 हिस्सों में जाएगी। और बच्चे छोटे हैं तो गार्डियन कौन है, उनकी माँ है, तो प्रॉपर्टी किसके हाथ में जाएगी, वो हिस्सा किसको मिलेगा, माँ को मिलेगा। सो नेचुरली उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली उसका शेयर उसको नहीं मिलेगा। सो ओनली इन सच अ सिचुएशन थर्ड पार्टीज कैन टेक अ डिक्लेरेशन दैट मैरिज बिटवीन ए एंड बी वॉज वॉइड। हाँ, दैट अपार्ट, वो एग्जाम के लिए आपके नथिंग मच टू डू विथ योर एग्जाम्स। So this is clear that any conditions, read the last line again, section 11, contravenes any of the conditions specified in clause 1, clause 4 and clause 5 of section 5. So for violation of these 3 sections, the marriage becomes a void. But friends, in addition to these 3 conditions, और 2 situations होते हैं जहाँ पे marriage void हो सकता है, और 2 situations है जहाँ पे marriage void हो सकता है। वो पहले नोट डाउन कर लो, इफ़ यू आर हैविंग अ पेपर एंड पेन राइट डाउन। पहले तो मैरिज वॉइड कभी होगा, व्हाट आर द, और अगर क्वेश्चन आता है
void marriage. So you can write down point number 1, marriage which are solemnized in violation of the conditions set out in section 5 Roman 1, Roman 4 and Roman 5. ये हो गया पहले void marriage का कारण. Now in addition to these 3 situations और 2 conditions में marriage void हो सकता है. Write down those situations or write down those reasons or conditions. In addition to 5 subsection 5 section 5 Roman 1, Roman 4 or Roman 5, the marriage will be void if it contravenes section 7 ceremonies of marriage, that they have not undergone the proper ceremonies of marriage. Now say I will give you example. Suppose both the parties are Hindu, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? कुछ भी ऑप्शन है, उनको सप्तपदी करना ही पड़ेगा. लेकिन सपोज लड़का है वो हिंदू है, लड़की है वो सिखनी है, लड़की इज अ सिख, तो उनके पास ऑप्शन 2 है, या तो सप्तपदी कर लो या तो गुरुद्वारा में जाके अनंतकारा कर लो. लेकिन वो डिसाइड करते, काम करते हम लोग जट लोगों के जैसे शादी करते, या लेट अस सोलमनाइज अ मैरिज लाइक अ बुद्धिस्ट जिसको थोड़ा सा निकाह का स्वरूप है. सो दैट विल बी वॉइड. सो प्रॉपर सेरेमनी इज नॉट गॉन. और वो जो सप्तपदी है वो भी 7 स्टेप्स पूरे होने चाहिए. आई अगेन रिपीट, सप्तपदी, पद मीन्स व्हाट? पाउल. आप जो पैर डालते हो उसको सप्तपदी. सो 7 स्टेप्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सेक्रेड फायर. शादी खून या कोई लाल कलर या लाली या ये सिंदूर रहता है उसको मांग में भरने से शादी नहीं होती है. पॉइंट नंबर 1 जो आप हमेशा फिल्म में देखते हो. या पॉइंट नंबर 2, हार पहना दिया तो शादी हो गई, वो भी शादी नहीं होती है. शादी कभी हो सकती है? ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज टेक 7 सेक्रेड स्टेप्स बिफोर द फायर. एंड 7 मीन 7, 6 लेके 7वां नहीं लिया तो भी पूरा नहीं होगा. सो प्रॉपर सेरेमनीज अगर अंडरगो नहीं किया रहेगा, दैट मैरिज विल बिकम वॉइड इन एडिशन टू सेक्शन 5. देन और एक सिचुएशन है जहाँ पे मैरिज वॉइड हो सकता है. पॉइंट डाउन सेक्शन 15. Now kindly go to section 15. निकाला? Okay. Divorced persons when may marry again. मतलब जिनका तलाक हो चुका है, जिनका डिवोर्स हो चुका है, वो फिर से कभी शादी कर सकते हैं. When a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree, और ये पॉइंट नंबर 1 हो गया. देन पॉइंट नंबर 2, इफ देयर इज सच ए राइट ऑफ अपील, द टाइम फॉर अपीलिंग, वो एक पीरियड होता है लिमिटेशन का, दैट टाइम फॉर अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील बीइंग प्रेजेंटेड. सो पहले तो अपील का प्रोविजन ही नहीं है. देन नंबर 2, अपील का प्रोविजन है लेकिन वो अपील फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज जो भी होगा. नाउ सी यू मस्ट बी अवेयर, या यू मस्ट, अभी वो आपको लिमिटेशन तो नेक्स्ट सेमेस्टर में रहेगा, नॉट नेक्स्ट सेमेस्टर, इन 3rd ईयर, दैट इज सेमेस्टर नंबर 5. CPC के साथ लिमिटेशन होता है 15 या 20 मार्क के लिए. सी उसमें हर एक कॉज के लिए देर इज अ टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब. नाउ इफ नाउ सी पॉइंट नंबर 1, वेयर देर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील, तो ऐसा कभी हो सकता है कि देर इज़ नो राइट टू अपील. एक्चुअली ऐसे नहीं होता है. एवरी ऑर्डर कैन बी अपील बिफोर द सुपीरियर कोर्ट. लेकिन ये बार या ये डिस्क्वालिफिकेशन, यू कैंट अपील, अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ डिक्रीज विच आर पास्ड बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज. दोनों पार्टीज के सम्मति से, राजी खुशी, दैट बोथ पीपल वांट डिवोर्स, या दोनों ने, जैसे दोनों, या कुछ कंसेंट से डिक्री ले लो कोई कोर्ट से ऑन वट एवर सब्जेक्ट मैटर. इन दैट केस डिक्रीज विच आर पास्ड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज कैन नॉट बी अपीलेबल. उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकता है. ओनली अपील कैन बी मेंटेन इन सच केसेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, कि वो कुछ फ्रॉड करके वो डिक्री ली गई है, दैट कुछ किस्म का न फसौल है या कुछ किस्म का ये है, तो ही हो सकता है. देन राइट टू अपील हैज फाइंड. अपील का टाइम क्या होता है मालूम है किसी को? इन केस द डिक्री ऑफ डिवोर्स, कंटेस्टेड डिवोर्स, जहाँ पे एक पार्टी डिवोर्स के लिए फाइल कर रही है और दूसरी पार्टी अपोज करे, उसको कंटेस्टेड पिटिशन बोलते हैं, मतलब झगड़ा है. सो द पिटिशनर, हस्बैंड या वाइफ कोई भी होगा,
ही इज फाइलिंग फॉर डिवोर्स एंड द अदर पार्टी, अगेन हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, दैट रिस्पोंडेंट इज अपोजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको डिवोर्स नहीं चाहिए, उसको डिवोर्स नहीं देना है फॉर वॉट एवर रीजन, इन दैट केस सपोज अ डिक्री ऑफ डिवोर्स इज पास बाय द कोर्ट, इन दैट केस जो अपोज कर रहा है पार्टी, दैट विल बी द एग्रीड पार्टी एंड दैट पार्टी हैज अ राइट ऑफ अपील। और अगर रिफ्यूज किया रहेगा या उसका पिटिशन डिसमिस कर दिया होगा, डिवोर्स रिजेक्ट किया, इन दैट केस जो पिटिशनर होगा, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, ही विल बी द एग्रीड पार्टी। इसी अभी समझो हस्बैंड ने पिटिशन फाइल किया फॉर डिवोर्स अगेंस्ट द वाइफ, नाउ एज्यूम थिंग कि उसका पिटिशन डिसमिस हो गया, तो यहाँ पे कौन एग्रीड हो गया, किसके अगेंस्ट ऑर्डर गया, हस्बैंड के अगेंस्ट, उसको क्या चाहिए, डिवोर्स चाहिए जो उसको नहीं मिला, सो ही कैन अपील टू द हायर कोर्ट एंड इफ उसको डिवोर्स दिया है, husband prays for divorce, files for divorce and that divorce is granted, the wife is opposing the divorce, उसको divorce नहीं चाहिए, so in that case who is affected party, aggrieved party, किसका right हलन हुआ या किसको affect हुआ है, it is the wife, so she can file appeal। so ऐसे situation जहाँ पे contested petitions है, one party is praying for divorce, other party is opposing for that particular thing, in that case appeal can be filed। अगर family court है, अपील नीड्स टू बी फाइल विद इन 30 days, 30 दिन में। देन सी अगर फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया रहेगा, उसके अगेंस्ट अपील विल डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, एंड दैट टू बिफोर द खंडपीठ, दैट इज द डिवीजन बेंच, सिंगल जज के सामने वो मैटर नहीं जाती है। एंड इन केस दैट डिक्री इज पास्ड बाय अ सिविल जज सीनियर डिवीजन, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, in that case the appeal will not go to the high court but that appeal will go to the district court, appeal will go to the district court and then एक बार district court, so first appeal will go before the district court, so district court के ऊपर second appeal कहाँ पे जाएगा, before the high court but before the single judge। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, सो अपील गोज बिफोर द हाई कोर्ट, दैट टू इन द डिवीजन बेंच, सो सेकंड अपील विल नेचुरली गो नॉट टू द हाई कोर्ट बट टू द सुप्रीम कोर्ट। या सिंगल जज के सामने गया तो डिवीजन के सामने अपील नहीं होगा, इट विल गो टू सुप्रीम। तो ये थोड़ा सा सिचुएशनल डिफरेंस समझ लो। सो सेक्शन 15 देख लो आगे। हाँ, सो सिचुएशन 1 क्या है, आइदर देर इज नो राइट टू अपील अगेंस्ट अ डिक्री, और सिचुएशन 2 क्या है, इफ देर इज सच ए राइट ऑफ अपील, द राइट फॉर अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील बीइंग प्रेजेंटेड। ये लिमिटेशन 30 दिन का था, सर्टिफाइड कॉपीज मिल चुकी है, और सर्टिफाइड कॉपी का टाइम जो लिमिटेशन रहता है ना, दैट स्टार्ट्स आफ्टर दैट कॉपी इज एक्चुअली हैंडेड। और कभी कभी क्या होता है ना, अभी फैमिली कोर्ट में फिलहाल देखो आप, एक बार ऑर्डर पास हो गया, डिक्री हो गई, उसको हाथ में आते 2 या 3 महीने लग जाते हैं। थाने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है रिलेटिवली, लेकिन मुंबई फैमिली कोर्ट जाओ बैंड्रा, इट टेक्स 2 to 3 months टिल यू गेट द कॉपी। तो टाइम तो 30 days का ही है। सो बेस्ट थिंग क्या है, प्रैक्टिशनर लॉयर्स को मालूम है, दे विल फॉलो दिस प्रैक्टिस। आज अगर ऑर्डर हुई है ना, वो आज के आज या दूसरे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन छोड़ के इमीडिएटली दूसरे दिन, या आज अगर ऑर्डर हुए तो आज ही के दिन दे विल प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। 5 रुपये का स्टैम्प लगाना पड़ता है पेपर पे, हैंड रिटर्न भी चलता है। या ज़्यादातर वकील क्या करते हैं, उनके पास फिल इन द ब्लैंक जैसा रेडी ही रहता है, उस पर पूरा टाइप किया हुआ रहता है, खाली उसमें इन द कोर्ट ऑफ नाम डालो, फैमिली कोर्ट ही होता है अगर ये तो, या उधर हाथ से डालो फैमिली इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल जज फैमिली कोर्ट थाने। बाकी का ये प्रिंटेड रहेगा, खाली वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट का जगह रहता है, वो हाथ से भरेंगे, नंबर डालेंगे और आज का तारीख डालेंगे, दैट काइंडली इशू मी योर ऑर्डर। सी इससे क्या होता है, आप अप्लाई करो तो आपका लिमिटेशन रुक जाता है। एंड देन सपोज आपको 40 दिन के बाद ऑर्डर मिल गया, तो आपका ऑर्डर हो गया वो 1 ही दिन वेस्ट हो गया, और आपको जो दिन मिलेगा वो दिन से आगे के 30 days, दैट विल बी द लिमिटेशन। वो मैं आपको लाइव लेक्चर्स में जब हम लोग फिजिकली क्लास में मिलेंगे तभी ज़्यादा बताऊंगा, या दैट कैन बी डेल्ट विथ प्रॉपरली ड्यूरिंग द लॉ ऑफ लिमिटेशन, बिकॉज दीज आर द ट्रिक्स ऑफ ट्रेड which can be very effectively and lengthily or at length discussed during these lectures. सेक्शन 15 आगे देख लो। सो पहला सिचुएशन हो गया कि अपील का राइट ही नहीं है। सेकंड सिचुएशन हो गया कि अपील का राइट है लेकिन उसने अपील फाइल ही नहीं किया इन दैट प्रिस्क्राइब पीरियड। एंड थर्ड सिचुएशन आगे आता है, और एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड बट हैज बीन डिसमिस्ड। सो अगर अपील फाइल किया जाता है, पार्टीज को दूसरी शादी करने के लिए रुकना पड़ेगा। सो एज्यूम अ सिचुएशन वेयर द हस्बैंड फाइल्स फॉर डिवोर्स, वाइफ इज अपोजिंग और हस्बैंड को मिल गया। नाउ हु इज द एग्रीड पार्टी, यहाँ पे अपील कौन फाइल करेगा, अपील विल बी फाइल्ड बाय द वाइफ।
सो नाउ शी गोज फॉर फाइलिंग एन अपील. उसने अपील फाइल किया, लेकिन इन द मीन वाइल हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली. अभी डिवोर्स हो गया, तलाक हो चुका है, शादी डिजोल्व हो चुकी है, तो मैं दूसरा मैरिज कर सकता हूँ ना. लेकिन अगर अपील किया रहेगा, यू कांट मैरी टिल द अपील इज डिसाइडेड बाय दैट कोर्ट. नहीं तो क्या होता है, देखो अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, मैंने मीन्स आई डोंट नो व्हाई गिव मी एग्जांपल्स. द हस्बैंड मैरिज फॉर अ सेकंड टाइम, डिवोर्स मिल चुका है, एंड हिज वाइफ पिटिशंस द कोर्ट फॉर डिवोर्स एंड द appellate court, then let it be high court or let it be a high court in appeal or let it be a district court in appeal. That court finds that the decree is wrong and needs to be set aside, and that court quashes and sets aside that decree. सो अभी क्या करोगे, वो पति तो पहले ही शादी कर चुका है, तो दूसरी शादी तो वो करेंगे क्या उसका. सो इन सच सिचुएशंस सेकेंड मैरिज इज़ नॉट परमिसिबल. सो अगर वो पति ने या पत्नी ने, जो भी पार्टी है, उसने अगर ये अपील के पेंडेंसी में शादी कर ली तो भी वो वॉइड हो जाएगी. सो लेट मी wrap up section 11. Marriage will be void for reasons. Point number 1, if the marriage contravenes any of the subsections of section 5, Roman 1, Roman 4 and Roman 5. In addition to this, marriage can be void for violation of section 7, that is the necessary ceremonies are not undergone. And number 3, if the provisions of section 15 are violated. So ये 3 कारण रहेंगे तो मैरिज वॉइड होता है. सी प्रैक्टिकली मैरिज वॉइड होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई कोर्ट में नहीं जाएगा तो इवन इफ अ मैरिज इज वॉइड इट विल रिमेन एक्चुअली टेक्निकली वैलिड, क्योंकि कोर्ट में जाएगा कौन, थर्ड पार्टी कौन है. वो उधर क्या लिखा है, वेयर द आइदर पार्टी पिटिशंस द कोर्ट अगेंस्ट द अनदर पार्टी. सो व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर अ मोमेंट, सी सेक्शन 11 अगेन एंड देन आई गो टू सेक्शन 12. Any marriage solemnized after commencement of this act shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto. So husband या wife against the other party. So husband किसके अगेंस्ट फाइल करेगा, पत्नी के खिलाफ. पत्नी किसके खिलाफ फाइल करेगी, हस्बैंड. लेकिन दोनों ने अगर वॉइड शादी की है तो दोनों में से कौन जाएगा, आप और मैं तो नहीं जा सकते हो, या तीसरा लोग कोई नहीं जा सकता है. सो दैट बिकम्स अ इशू. ओके, सो हियर वॉइड मैरिज इज कंप्लीट. Then I go to section 12, that is voidable marriage. See, void और voidable में फ़र्क क्या होता है वो मैंने लेक्चर में भी डील किया और शायद हमने उस दिन गूगल मीट पे भी शायद डिस्कस किया था. voidable marriages क्या होता है, इट्स लाइक अ voidable contract. voidable contract और void contract में क्या फ़र्क होता है, वैलिड तो वैलिड है, चलो नो इशूज़. लेकिन इशू कहाँ पे होता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर void और voidable. लेकिन void है तो नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, और voidable होगा तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है. ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ valid contract are there. It not ingredients, sorry, I just made a wrong statement. All ingredients of enforceable contract are there. So agreement contract तो बन रहा है, लेकिन at the instance of one of the parties for whatever reasons, मे बी कंसेंट फ्री नहीं है, कि कंसेंट ऑप्शन किया था जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है, कि कंसेंट नहीं था या कंसेंट देते वक्त फ्री नहीं था, कोर्शन था, और देयर वाज अनड्यू इन्फ्लुएंस, या तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन था, या तो फ्रॉड किया हुआ है, या तो मिस्टेक किया हुआ है. इन दैट केस दैट मैरिज विल बिकम मियरली वॉइडेबल. सो व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ मैरिज कैन बी वॉइडेबल. सी लेट मी पॉइंट आउट बिफोर बिगिनिंग द सेक्शन. अगर एक शादी वॉइडेबल शादी है अंडर सेक्शन 12, बट द पार्टीज डोंट गो बिफोर द कोर्ट. अभी देखो इसमें क्या होता है ना, दोनों पार्टी नहीं जा सकती है. कौन जा सकता है, जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, या और भी उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है, वी विल गो टू दैट. सो दैट पार्टी, अफेक्टेड पार्टी या जो इनोसेंट पार्टी आप बोल सकते हो, ओनली दैट पार्टी कैन गो टू द कोर्ट. दोनों के पास वो ऑप्शन नहीं है. लेकिन जो इनोसेंट पार्टी है, दैट चूजेज नॉट टू गो बिफोर द कोर्ट. In that case, though that marriage is voidable, it will remain valid. It will remain valid. Okay. Now let us see section 12, voidable marriages. Read section 12. Section 12, voidable marriages, subsection 1. Any marriage solemnized, whether before or after commencement of this act, shall be voidable and be annulled by a decree of nullity on any of the grounds, namely voidable means what, avoided by one of the parties, avoidable. Following grounds, namely A, that
the marriage has not been consummated owing to the importance of the respondent. Consummated means what? See, कोई भी शादी कंसूमेट कभी होती है when after the marriage the first ever physical intercourse, जिसको मैरिटल इंटरकोर्स बोलते हैं, शरीर संबंध जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए. सो दैट फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज़ टू टेक प्लेस, सो दैट मैरिज इज नॉट, उसको बोलते हैं मैरिज कंसूमेशन हो गया, मैरिज अकाउंट हो, जैसे बैंक में रहता ना अकाउंट खुल गया, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो यहाँ पे पति पत्नी का अकाउंट, जॉइंट अकाउंट खुल गया है लाइफ का, एंड वो नहीं हो सका है ओइंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट. वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है. Now what is importancy? I had discussed in the live lecture. Importancy is the very incapacity to do a physical intercourse, a sexual intercourse. So that is inability. So on the part of males, they don't have the ability of getting erections for doing the sexual intercourse. And wife का क्या है? Wife has to cooperate. She has to help the husband or allow the husband that she cannot do for whatever reasons. तो वो, so let us put it in the plain language that ती भावना नसते for whatever reasons. फिजिकल कमतरता होती है, किसी को कुछ मेंटल ब्लॉक होता है, कुछ होता है for whatever reasons. Let's not go into that more deep. So thing is what it has to do something with the basic inability. It has got nothing to do with procreation of children. So एक हमारे स्टूडेंट ने आंसर दिया था, जिनको बच्चे नहीं होते वो इम्पोर्टेंट होता है. नो, वो नपुंसकता नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. दैट इज ये बोलते हैं उसको इनकैपेसिटी टू प्रोक्रिएट, कि बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन बच्चे पैदा नहीं होते तो भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं. सो इट इज़ बेसिक इनएबिलिटी, कमतरता है, एक शारीरिक कमतरता है जहाँ पे आपका जेंडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट इज द थिंग. तो इसमें देखो, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल विथ प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. And point number 2, again put it clear, let me be very precise, and again let me tell you, और ये repeat भी करने दो. See, these talks are only because of the syllabus, and this forms part of the exam and is coming within the sweep of our subject. इसलिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं, वरना सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल रिलेशनशिप, ये सेक्स एजुकेशन का लेक्चर तो पक्का नहीं है. सो उसको गलत तरीके से लेने का नहीं है. क्लासरूम में तो कभी कभी ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन सी वी आर एडल्ट्स एंड वी आर टॉकिंग एज लॉयर्स. सो ये चीज़ें जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर है, अभी किसी दूसरे आदमी को नंगा देखने के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन डॉक्टर को प्रॉब्लम होता है क्या नहीं, उसकी वो नज़र मर जाती है. नज़र मर जाती है मीन्स शॉर्ट, उसको वो एक्साइटमेंट नहीं रहती कि किसी पेशेंट को नंगा देखो तो अरे उसको ट्रीट करना है, उसका कुछ ट्रीटमेंट के लिए मैं देख रहा हूँ. सो वो लेवल हमारा होना चाहिए जब हम लोग ये बातें कर रहे हैं क्लासरूम में. वी आर नॉट डूइंग एनी गॉसिप, वी आर नॉट डूइंग इट इन द कोलोक्वियल पैटर्न, या दो दोस्त या दो गर्ल्स दोस्तों में जैसे बातें होती है, एंड वी टॉक इन अ रफ मैनर, इन अ कोलोक्वियल मैनर, इन अ वल्गर मैनर. वो सब यहाँ पे नहीं हो रहा है. ये गप्पा नहीं मारते अपन, हम लोग गप्पे नहीं मार रहे. सो लेट अस बी एडल्ट्स एंड बी मैच्योर एंड टॉक एंड टेक थिंग्स इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर. सो देखो, बेसिक इनएबिलिटी टू डू सेक्स, दैट इज द इनकैपेसिटी ऑफ ये नॉट एबल टू प्रोक्रिएट, मतलब द सपोज वो मेल का स्पर्म काउंट कम है, ड्यू टू विच प्रेगनेंसी इज नॉट ऑकरिंग, या तो फिर द वाइफ इज नॉट फर्टाइल फॉर सम रीजन्स एंड प्रेगनेंसी कैन नॉट, तो दोष पति में है या दोष पत्नी में है, बच्चे नहीं हो रहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंसी, because they are very well capable of a physical intercourse. So marriage is consummated. And again let me put it that it has got nothing to do with degree of satisfaction. कुछ लोगों की विकृतता रहते है, एक किस्म का विकृत माइंड रहता है की अरे ह्याच्यापेक्षा ती जास्त सुंदर आहे तर मला तिच्याबरोबर जास्त मजा येईल, मैं दूसरे के साथ ज़्यादा एन्जॉय कर सकता हूँ. सी अगेन इम्पोर्टेंसी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ दैट एस्पेक्ट. इफ बोथ द पार्टीज आर केपेबल ऑफ एस्टैब्लिशिंग दैट फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट इज सफिशिएंट. दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. Okay. Okay. Now read further. B, that the marriage is in contravention of conditions specified in clause Roman 2 of section 5. Now what is Roman 2 of section 5? Kindly go back to section 5. इसीलिए बोलता हूँ हमेशा बेटे साथ में रेडी होना चाहिए. Section 5 Roman 2. At the time of the marriage, neither party A
is incapable of giving a valid consent to it in consequences of unsoundness of mind. सी क्या होता है ना, हम लोग बोलते अरे वो आदमी तो पागल है, उसको समझ में नहीं आता इसको शादी कैसे हो गई, लेकिन फिर भी शादी हो गई. क्यों हो गई? बिकॉज मैरिज वैलिड होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन प्रेसिडेंट कि बोथ द पार्टीज फर्स्टली मस्ट बी विद इन द एज, तो एज तो होना चाहिए. देन पॉइंट नंबर 2, दे मस्ट अंडरगो द नेसेसरी सेरेमनीज. नाउ सपोज आप पिक्चर में देखते हो, कभी कभी मूवीज में रहता है ना, हीरो पागल था, उसके साथ शादी करते हो और बाद में पता चला वो पागल है. शादी करने के बाद में, अभी बाद में कैसे पता चलता है आई डोंट नो, मूवीज रहता है, लेकिन ऐसा हो सकता है. सो इन दैट सिचुएशन, जैसा एक बहुत फेमस मूवी था संजीव कुमार का खिलौना, जिसमें वो संजीव कुमार पागल रहता है और उसकी शादी किसी, वो हीरोइन शायद मुमताज़ थी, आई डोंट रिमेंबर, उसके साथ उसका शादी हो जाता है. एंड देन शी रियलाइजेस करिए तो पागल आदमी के साथ शादी हुई है. सो एक्चुअली वो शादी है ही नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दैट इज़ अवॉइडेबल मैरिज. वाई यू नो? बिकॉज दे हैव अंडरगॉन सेरेमनीज ऑफ मैरिज. सप्तपदी या जो भी रहेगा वो हो चुका है, वॉट एवर रिक्वायर्ड सेरेमनी, सप्तपदी अलंकारा या जो है वो हो चुका है. सो वंस दैट हैज़ बीन अंडरगॉन बाय द पार्टीज, मैरिज बिकम्स वैलिड. सो यहाँ पे मैरिज क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा और वॉइड नहीं होगा. या बी, दो केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट has been suffering from a mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children. थोड़ा सा सटका हुआ रहता ना, थोड़ा सा पागल है, ऐसा नहीं. हम वो एक चाची है, वो थोड़ी सी शुरू से ही पागल है, लेकिन शादी करके उसको बच्चे हो सकते हैं, वो संसार बराबर से चला सकती है. सो वो कभी इफेक्ट होगा ओनली व्हेन दे आर नॉट फिट टू मैरी. देखो, रीड दैट अगेन. और टू सच एन एक्सटेंट as to be unfit for marriage and procreation of children. तो आदमी थोड़ा सा पागल है लेकिन शादी करके रह सकता है, तो उसको ये अफेक्ट नहीं होगा. Then C has been subject to recurrent attacks of insanity. वो जितना उसको डिस्कस करेंगे उतना ही कम है. लेकिन क्या होता है, सी सेरेमनीज ऑफ मैरिज हो गए, मैरिज वैलिड हो जाएगा. सो द अदर पर्सन, नाउ सपोज ए का शादी हो गया बी से, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, एंड ही डिस्कवर्स दैट द वाइफ इज़ नॉट इन अ प्रॉपर माइंड. अभी मेरे ही कज़िन का हुआ था, शादी करते हो खाली उनको बताया था कि लड़की थोड़ी सी दिमाग से कम है. उनको ये नहीं बताया था दैट हर ब्रेन इज़ कम्प्लीटली नॉट इनकैपेसिटेड. शी वॉज नॉट मैड, शी वॉज नॉट मेंटली रिटार्डेड, लेकिन उसका ब्रेन का ग्रोथ अरेस्ट हो चुका था. दो शी वॉज 23-24 ईयर्स ओल्ड, मेंटली दिमाग से वो 10 साल की ही थी. तो उसको उतना ही समझ में आता था दैट शादी मीन्स व्हाट, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, मेकअप करो, घूमो फिरो, पिक्चर को जाओ, होटल में जाओ, खाना खाओ, मज़े करो. लेकिन शादी का दूसरा पार्ट क्या रहता है, इम्प्लीकेशंस क्या होता है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द हस्बैंड, ये वो समझ ही नहीं पाती थी, उसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसको दिमाग बच्चे का था. तो ये पति जब ये अपना पतिपन हक जताने के लिए उसके नज़दीक जाता था टू एस्टेब्लिश अ फिजिकल रिलेशनशिप, वो भागती थी. और ये बहुत दिन तक कंटिन्यू हुआ एंड देन बाद में उसको डिवोर्स लेना पड़ा. सो दैट वाज अ केस दैट दो शी वाज विद इन द एज ऑफ मैरिज, और उसके कंसेंट से ही शादी हुई थी, उसके पेरेंट्स ने भी कंसेंट दिया था, उसने भी कंसेंट दिया था, बट उसका ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करता था. सो शी वॉज नॉट फिट फॉर मैरिज एंड नॉट फिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. सी पति मेरे पास आ रहा है और वो मुझे छू रहा है, उधर ही उसकी पूरी हालत ख़राब हो जाती थी. मतलब शी यूज टू गो इन टू फिट्स, कि उसको एक किस्म का रेज आता था, वो गुस्सा हो जाती थी, कभी भाग जाती थी, एंड देन शी घर पे भागे वापस आई नहीं कभी. सो ये रहता है. सो कभी वो अनफिटनेस है ना, दैट हैज़ टू डू विद द मैरिज. तो मैरिज में इनिशियली एज आई टोल्ड यू दैट, एक बार मैंने शायद लेक्चर में भी बोला था कि मैंने एक बार लड़के को डांटा था. मैंने उसको ऐसे क्लास में पूछा दैट अकॉर्डिंग टू द क्लास कैन एनीबडी आंसर व्हाट इज़ द बेसिक इंटेंशन ऑफ मैरिज. तो एक लड़के ने आंसर दिया, सर मैरिज करने का बेसिक इंटेंशन होता है सेक्स करना, कानूनन सेक्स. अरे सेक्स करने के लिए शादी थोड़ी ना करनी पड़ती है. हाँ, लेकिन एक चीज़ है दैट इनिशियली वो बाद में स्पिरिचुअल लेवल पे जाओ, जन्म जन्म का रिश्ता है, सातों जन्म के रिश्ते, वो सब फिलोसॉफिकल बातें बाद में करो, लेकिन इनिशियली वो फिजिकल अट्रैक्शन तो होता ही है. सो ऐसा कोई तो मैरिज नहीं हो सकता है ना कि चलो जिंदगी भर दूसरे को छुएंगे नहीं, पति पत्नी के रिश्ते रहेंगे ही नहीं, वो तो नहीं हो सकता है. सो इनिशियली दैट थिंग इज़ देयर. उसका इंटेंसिटी प्रैक्टिकली लेट मी टेल यू ना, आई एम मैरिड फॉर मोर देन 20 ईयर्स से 21वां साल मेरा चालू है. इनिशियली पति पत्नी को एक दूसरे में फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहता है. So they are physically more attracted
एंड वो जो इंटेंसिटी होता है सेक्स करने का, जो मैरिटल इंटरकोर्स का, दैट शुरू में ज़्यादा होता है, वो बाद में धीरे धीरे कम होता है. नॉट नेसेसरी कि गायब भी हो जाएगा एंड देन दे विल बिकम लाइक नो चलो एकदम संत बन गए और अभी कुछ दूसरे, दे विल नॉट बी, ऐसा नहीं होता है. वो अगेन देर आर सर्टन एज, पोटेंसी का एज होता है कि मेल कब तक पोटेंट है, या फीमेल्स में कभी कभी हो जाता है कि दैट आफ्टर दे हिट देयर मेनोपॉज, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद हो जाता है, तो वो टाइम पे शायद फीमेल माइट नॉट बी रेडी, और उसको शायद बाद में घिन आ जाएगी और बोले कि वह आगे से नहीं हो सकता है मेरे से, आई कैन मेंटेन फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू. कभी कभी मेल्स में भी होता है. मेल्स काफ़ी आप कम एग्जाम्पल देखोगे. एंड माणूस हा प्राणी ऐसा है ना, बुढ़ापे तक उसका मर्दान की जाती नहीं है. इसीलिए वो बोलते हैं ना, बंदर बूढ़ा हो जाए तो भी कूदना नहीं भूलता, दैट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन आइडियली सी इट हैपन्स टू मेल्स ऑल्सो दैट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ एज मेनोपॉज लोगों पे भी आ जाता है. वो इरेक्टेबिलिटी जो रहता है, वो जो पावर चाहिए सेक्स करने के लिए, वो मेल में भी कम हो जाता है. इट हैपन्स. सो दैट अपार्ट. लेकिन इनिशियली importance is there to the physical relationship. Okay, so let us go back to section 12. So subsection B cover हो गया, that the marriage is in contravention of conditions specified in clause Roman 2 of section 5. and C, अभी C देखो, that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was required. Now this has been removed. Child Marriage Recent Act is there in place, and no guardian has any business to marry his child, child, whoever it is, boy or girl, if he is not within the age of majority. What is the age of majority for contract? It is 18 years of age. Voting right 18 साल में मिलता है. A minor becomes a major in the age of 18. But for marriageable age, a male has to be 21 and not 18. So marriageable age क्या है? Valid marriage age, as per the Child Marriage Act, the husband, that is bridegroom, must be 21 years old, and the bride, that is the wife, the girl, must be 18 years old. Hindu Marriage Act. Okay, so read section subsection C further. That the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was required under section 5 as it immediately stood before commencement of Child Marriage Act. So now तो Child Marriage Act है. The consent of such guardian was obtained by force or by fraud as to the nature of ceremony or as to the material fact of circumstances concerning the respondent. So ideally this condition does not apply. Or D very very important, that the respondent was at the time of marriage pregnant. अब ये तो वाइफ को ही हो सकता है, वाइफ ही प्रेग्नेंट हो सकता है, हस्बैंड तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है. That the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner. वरना शादी से पहले मैं ही गड़बड़ कर चुका हूँ. We have established relationships, हमने शारीरिक रिश्ता एस्टेब्लिश किया है, and a girl becomes pregnant, so I cannot take objection that she was प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज. लेकिन वो किसी और के वजह से होगा तो ही ये ग्राउंड अवेलेबल है. सो वेयर द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन द पिटिशनर. नाउ सी सबसेक्शन 2. नाउ दीज आर द कंडीशंस नॉट विथ स्टैंडिंग. सो दिस इज द ओवरराइडिंग इफेक्ट. जब तक ये नहीं होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा. सी रीड फर्दर. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, नो पिटिशन फॉर एन्युअलिंग अ मैरिज A on the ground specified in clause C of subsection 1. Clause C of subsection 1. Shall be entertained if Roman 1 the petition is presented more than 1 year after the force has ceased to operate, or as the case may be. If the petition is present, let me read it again, I just missed something. If the petition is presented more than 1 year after the force has ceased to operate, or as the case may be, the fraud has been discovered. So देखो फ्रॉड का कैसा होता है कि अरे फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, ये मुझे पता चला, तो ये फ्रॉड डिस्कवर होने के बाद मुझे आज पता चला तो 1 साल के अंदर पिटिशन करना पड़ेगा. और अगर फोर्स था, ज़बरदस्ती लिया है कंसेंट,
बाय कोर्शन, इन दैट केस वो फोर्स कभी तो, अभी देखो एक पिक्चर था ना, सनी देओल का पिक्चर था अर्जुन पंडित, बहुत पॉपुलर हो गया था, बहुत फेमस हो गया था वो पिक्चर। उसमें वो जूही चावला से शादी करता है, हीरोइन से शादी करता है, और वो शादी करने के लिए क्या करता है, उसका भाई को या किसी को किडनैप करता है, पिताजी को, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन था, एक ही बार वो मूवी देखा था मैंने। तो उसमें सिचुएशन क्या था कि वो किसी उसके रिलेटिव को गन पॉइंट पर रखता है और उसको धमकी देता है दैट इफ़ यू डोंट मैरी मी, मैं इसको माई पर्सन विल इमीडिएटली किल हिम। तो वो डर के मारे वो शादी कर लेती है। सो अभी उसने शादी उसके मर्जी से की है क्या, नहीं की है, उसका कंसेंट कैसे लिया, फोर्स से लिया हुआ है, सो कोर्शन है। तो ये फोर्स कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। सो ये फोर्स जब भी खत्म हो जाता, समझो मैंने वो वहाँ पे 15 दिन वो आदमी को बिठा कर रखा है, कभी ना कभी तो वो आदमी को छोड़ूंगा ना, अभी तो शादी हो चुकी है। सो वो फोर्स जब भी खत्म हो रहा है उसके बाद में 1 साल, सो 1 ईयर आफ्टर दैट फोर्स हैज सीज टू ऑपरेट और द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड, इन दैट केस यू हैव टू अप्रोच बिफोर द कोर्ट। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ, और एक फिल्मी एग्जांपल देता हूँ। मैं आई एम नॉट अ फिल्मी गाय, लेकिन फिल्म्स के एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि दैट स्टूडेंट्स कैन रिलेट एंड कैन अंडरस्टैंड। एक मूवी आई थी, बहुत हिट हुई थी, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, इसकी राकेश रोशन की मूवी थी, कोयला नाम की। उसमें सिचुएशन क्या दिखाया था कि माधुरी दीक्षित को शादी के लिए शाहरुख खान का फ़ोटो दिखाया जाता है, तो शाहरुख खान का फ़ोटो देख के उसको प्यार हो जाता है या शी लाइक्स हिम एंड शी गिव्स कंसेंट। लेकिन एक्चुअली उसके साथ फेरे लेता है अमरीश पुरी, जो बूढ़ा रहता है, विलन रहता है। एंड देन बाद में शादी होने के बाद वो बैठे रहते हैं, शहरे में शादी होता है, शी डजंट, वो फिल्मों में होता था, पुराने ज़माने में होता था, उसको पति को भी ऐसे, आजकल के ज़माने में तो होगा नहीं। अभी तो क्या होता है, शादी तय होने के बाद इमोनी फिट से अरेंज मैरिज, वो लड़के लड़की अच्छे से घूमते, पिक्चर घूमना फिरना एक दूसरे के साथ काफ़ी वो लोग घुल मिल जाते हैं। सो नहीं देखने का बात नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा था कि कई बार लड़की तभी देखी जाती थी शादी होने के बाद। इसीलिए अगर आप देखो मराठी लोकांमध्ये एक विधी असतो बघा, हिंदू लग्नात आहे, म्हणजे मराठी लोकांमध्ये माहिती आहे का, मी मराठी, माझं लग्न मराठी पद्धतीने झालं आहे, एक सुन्मुख नावाचा एक विधी असतो। ज्या वेळेला पहिल्यांदा नवरा बायको एकमेकाला बघतात, वेन द हस्बैंड एंड वाइफ एक्चुअली लुक एट ईच अदर। सी पुराने ज़माने में क्या था, चाइल्ड मैरिजेस होते थे, इसीलिए वो ज़माने में कैसा था कि एक आईना लाया जाता था और वो दोनों को, पति और पत्नी को, वो सासू माँ के गोद में बिठाते थे, बच्चे रहते थे, एंड देन वो आईना ला के एक दूसरे को दिखाते थे। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ सीज ईच अदर। अभी आजकल ज़माने तो ये सब होता नहीं है। तो अभी माधुरी दीक्षित के साथ में धोखा हुआ था वो मूवी में, उसको फ़ोटो दिखाया शाहरुख खान का, शहरे में शादी हो गई, फेरे पड़ गए, शी अंडरवेंट द सप्तपदी एंड एवरीथिंग। एंड देन जब वो शादी का रिसेप्शन था तभी वो बैठी हुई रहती है, अगेंस्ट इट्स अ फिल्म सिचुएशन, एंड देन दी सीज दैट, एंड देन शी सीज दैट शाहरुख खान वो हीरो सामने डांस कर रहा है। तो वो जब भी उसको समझ में था तो अरे मुझे तो इसका फोटो दिखा था, मेरी शादी तो उसके साथ ही होनी थी, अगर वो यहाँ पे नाच रहा है तो वो यहाँ पे बाजू में तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन है, तो उसका सेहरा खींचती है। एंड देन शी डिस्कवर्स द फ्रॉड, कह रहे ये तो इस बुड्ढे ने मेरे साथ शादी कर लिया, विलन जो अमरीश पुरी साहब थे, जो किरदार उन्होंने निभाया था। सो अभी ये शादी कैसी हो गई, ये फ्रॉड हो गया। और कंसेंट कैसे लिया है, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या हो गया, उसका कंसेंट फ्री नहीं है, उसको क्या लग रहा है उसके शादी किसके साथ हो रही है, शाहरुख खान के साथ हो रही है, लेकिन एक्चुअल वास्तविकता में, रियलिटी में किसके साथ हो गई, अमरीश पुरी साहब के साथ। लेकिन वो फेरे पड़ गए और सप्तपदी हो गया, सो शादी हो चुकी है। सो नाउ इट इज़ फॉर हर। तो अगर वो कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करे कि मुझे मेरा कंसेंट ऐसा लिया गया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, then that marriage will become nullity, otherwise that marriage remains perfectly valid। फिल्मी एग्जाम्पल था, समझने के लिए था, भूल जाओ। आगे, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, वो ग्राउंड ए हमने देखा। नाउ ग्राउंड रोमन 2 देखो, सबसेक्शन 2 ए रोमन 2, द पिटिशनर has with his or her full consent lived with the other party to the marriage as husband and wife after the force has ceased to operate, or as the case may be the fraud has been discovered। so 1 साल के ऊपर हो गया तो ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा। then see Roman B, on the ground specified in clause D, that is the wife was already pregnant, D,
on the ground specified in clause D of subsection 1 shall be entertained unless the court is satisfied. Now see what are those conditions. Roman 1, that the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the fact alleged. So शादी जब भी हुई, जब भी वो पति ने हाँ बोला और शादी भी कर ली, at that time he was not aware of this fact. Then number 2, Roman 2, that the proceedings has been instituted in the case of a marriage solemnized before commencement of this act within 1 year of such commencement, and in case of marriage solemnized after and in case of marriages solemnized after such commencement within 1 year from the date of marriage. So 1 साल, वो आप बाकी का वर्डिंग्स भूल जाओ, 1 साल में होना चाहिए शादी होने के बाद. एंड देन रोमन 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये कंडीशन कंप्लाई नहीं हुआ तो वो ग्राउंड स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बिकम इनफ्रक्चुअस and petition cannot be maintained on this ground. Read Roman 3. That marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of existence of the said ground. See, consummation के साथ ये ground का कोई संबंध नहीं है. Even if the marriage is consummated and the first physical contact, the first marital intercourse, the first sexual intercourse between the husband and wife has taken place and this fact is discovered, तो भी ये ground available है. लेकिन ये ground discover होने के बाद, once the husband discovers that the wife is pregnant and she is not pregnant because of me but due to some other person, after that point of time there must not be a marital intercourse. Read that again. That the marital intercourse, Roman 3, that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence fact of the same ground. अभी देखो अगेन थोड़ा सा फिल्मी सिचुएशन आपको बता दो बिफोर आई वाइंड अप. बोथ द पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ, ट्रैवल करके हनीमून के लिए जाते हैं. बस से जाते, ट्रेन से जाते, प्लेन से जाते. कुछ कुछ लोगों का सेंसिटिविटी होता है, अरे थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है, तो हस्बैंड एंड वाइफ रीच द स्पॉट ऑफ देयर होटल, हनीमून स्वीट बुक वगैरह किया हुआ है, एंड देन फ्रेश करते हो, उसको बाथरूम में से आवाज़ आती है उल्टी करने की, आ करके कोई उल्टी करता है, कोई मतलब उसकी वाइफ उल्टी करती है, तो उसको पूछता है, तो बोलते काय माहीत नाही हो क्या हुआ है, मेरे को तब्येत खराब है. कोई मराठीत म्हणा ना कसं तरीच होतं आहे, मला मळमळत आहे, माझ्या पोटात दुखते. तो पति अगर अच्छा रहेगा तो बोले चलो ठीक है काम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कोई डॉक्टर ढूंढ लेता है, डॉक्टर के पास जाता है. अभी तक मैरिज कंसूमेट नहीं हुआ है, दैट फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है. हस्बैंड लेके जाता है उसको डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको मेडिकली चेकअप करते हैं, एंड देन फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बाप बनने वाले हो. डॅन्टा डॅन्ट मैं एकदम धाड से उड जातो, बाप रे क्या हो गया, चमायला मी अजून तर काय केलं पण नाही आणि बायको प्रेग्नंट कशी काय झाली. सो नॅचरली यहाँ पे क्या हो गया कि दिस इज़ नॉट माई चाइल्ड. तो ये डिस्कवर होने के बाद नहीं होना चाहिए. लेकिन कभी कभी होता है ना कि चलो उनका पहला फिजिकल कांटेक्ट हो चुका है एंड देन दे गो टू द डॉक्टर, और समझो शादी हो के कभी कभी रहता है ना, खाए के लोगों ना लगेज प्रेगनेंसी रहते. अभी इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, 2 2 जा 4 3 3 जा 6 को सबको एक ही टाइम पे होगा ऐसा नहीं. इसीलिए बच्चे सबको अलग अलग टाइम पे होते हैं, किसी को बहुत ट्राई करने के बाद होते हैं, किसी को ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही मीन्स नॉट ऐसे ही नेचुरली हो जाते हैं, दैट कंसेप्शन टेक्स प्लेस. सो वो एक्चुअली टाइम रहता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में जब वो एक हैच हो रहा है, नॉट हैच, मैच्योर हो रहा है, और उसी टाइम पे अगर स्पर्म का और वो फीमेल एक का कॉन्टैक्ट हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. सो कभी कभी क्या होता है, द फर्स्ट इंटरकोर्स में ही हो जाएगा, और कभी कभी 10 साल के बाद होता है, कभी कभी ट्राई करना पड़ता है, कभी कभी स्पर्म काउंट लेस रहता है. दिस विल डिपेंड एंड डिफर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं. तो अगर समझो वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो आई एम अंडर, आई और दैट नॉट अगेन आई, वाई आई ऑलवेज आई, दैट हस्बैंड इज आफ्टर इम्प्रेशन, कह रहे चलो शादी का, अरे बाप रे पहले तो शादी हो गई है, गुड न्यूज़ नंबर 1, अरे गुड न्यूज़ नंबर 2, अभी मैं बाप भी बनने वाला हूँ. तो चेकअप के लिए गया, तभी पता चला कि वो डॉक्टर्स फिर बाद में जब भी वेरीफाई करते हैं ना, तो हाँ प्रेगनेंसी, तो इनिशियली वो खाली प्रेगनेंसी किट से करेगा, फिर वो रिपोर्ट करेगा, टेस्ट करेगा प्रेगनेंसी की, येस इट इज़ पॉजिटिव दैट येस इज़ प्रेग्नेंट. लेकिन फिर बाद में वो वेरीफाई करेगा कि कितना दिन है क्या है. तो समझो सेकंड मीट में यू गो टू द डॉक्टर एंड ही सेज दैट यू नो फ्रॉम द चेकअप
it is clear that she is 4 months pregnant. हाँ, 4 months, शादी को तो 2 ही महीने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, शादी के टाइम पे वो पहले ही प्रेग्नेंट थी. एंड देन द हस्बैंड रिकलेक्ट, अरे बराबर है, शादी होने के बाद में उसको एक भी बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हुआ, जो मंथली पीरियड्स होते हैं, पाड़ी आलीस नहीं बायकोला, ये उसको समझ में आ गया. दैट मीन्स दैट शी वॉज प्रेग्नेंट. तो और अभी जब पता चल रहा है, तो इवन इफ मेरे साथ उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो चुका है, दैट प्रेगनेंसी इज नॉट बिकॉज ऑफ मी. लेकिन ये पता चलने के बाद, once you discover this fact, thereafter there must not be marital intercourse. Read that 3 again. That marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground. So section 12 यहाँ पे ख़त्म हो गया. So I have covered void marriages section 11 and voidable marriages section 12. Next lecture or next video I will deal with restitution of conjugal rights, that is section 9, then judicial separation, that is section 10, and then we will start with the actual grounds of divorce, section 13. So this is it for this lecture. Now we continue in our next lecture. Any queries, any difficulties, you can always contact me. खाली मुझे पर्सनल कॉल नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना. बी रेडी विथ योर क्वेरीज, हमारे लाइव लेक्चर में पूछो. दैट लाइव सेशन इज मेंट फॉर दैट. एंड अगर रिक्वायर्ड यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल, आई एम ओपन टू दैट. लेकिन खाली फ़ोन करके कोई मुझे क्वेरी नहीं पूछेगा. दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आई विल, नेक्स्ट lecture, that is next video, I will start dealing with section 9 and then onwards. Okay, that's it for now.